Very good morning, Ji. We are enjoying in a very pleasant weather at Sakha. I think it's a great privilege to be here. What we were hoping for the city was that we'll be enjoying how this city is and how Dr. Haresh and his team is going to organize a very challenging task. Uh, Very warm welcome to my esteemed teachers, my colleagues, my friends. The idea to select this topic and to talk with you all was for the medical doctors and our community, the happiness and high achievements. I think very challenging for all of us. My objective was to interact more with these medical students and young residents. And at the same time, we all medical doctors, stick between the two. Okay, what is the right way to go? And therefore, I will try to give you just the overview of this, what it is actually, and what we are going to look for, and how we can find the possible solutions out of all this. Happiness is important or high achievements. Dr. Usman is accompanying me and he'll be interacting with the audience, and then we'll try to reach at some point together. So I wish and pray that we are able to make it more interactive, and I am here to learn from you. Great Nishtar Medical College, I just want to skip this. Just to give you an overview that we have already been working on this, the youth mental health. Why it is very important, because in the country 65% people are youth, and I think very challenging area is how we need to go in the very challenging times when they have to achieve and at the same time taking care of their happiness. So a few things we have been doing, and then a few talks on the social media is a bigger platform where we try to interact. I think this allows us to interact and to reach to more people. I think that was also something which is allowing us to interact with the young community. Just an overview of this, that what are we actually looking for, why it is important, what are the components to reach out of this concept, how we are going to reach by looking and interacting with those concepts, किस तरीके से हम उसको फिर eventually कहीं पहुंच सकते हैं. Then how to achieve these goals. Managing yourself or others is one thing which we need to understand and what it is. And then how we'll be practicing it eventually. If I asked many of you, what are the objectives, what are you looking for, especially the medical doctors, professionals, they just want to achieve and achieve and achieve the skills. They are going abroad, they are investing so much in their medical school first, and then that is not again easy to reach a medical school. And after completing, and they are working so much on their skills, going abroad, looking for whatever possible ways we have to achieve their skills and to reach at some point. I think, let's see, we should keep trying to achieve those objectives, or there is some full stop. How much we need to sacrifice to achieve all those objectives. अगर happiness में देखें तो Finland has been ranked number 1 and Pakistan is on 121 number. I think a great gap. Perhaps it is not easy to fill that gap, but we can at least talk and discuss that what are we lacking actually. If you see the list of the countries where people are happy, and then we are at 121. A few countries are only lagging down. Otherwise, it's not a good number, not an attractive number at least. This slide, I think, makes some sense. If we look at it, for example, money is important or our health is important? Have we ever asked this question to ourselves? The money, how much money we need then in the second go? Fame or your happiness, or perhaps their skills for the medical doctors, or relationships. They are learning second fellowships, and then perhaps they have not seen at some point that their mother also needs them when they were gaining their new skills in somewhere in the different, very far off areas at the different islands. And did they ever thought that this is important, that we need to make some coherence or some balance? It also depends that who was your mentor. Your parents, you were very much influenced by your parents, your teachers,
or there was some mentor who was guiding you. आपने बड़े आराम से सुना होगा लोग कह देते हैं कि पैसा ही सब कुछ है जी, और वो बच्चा जब बहुत साल तक हम ये सुनते जाते हैं तो then we start trying and behaving like the same, that money is important. Some my very influential teacher has told me that money is important. So and then he doesn't seem look back, okay, what I am missing, what sacrifice I am giving. Then these questions, if that topic makes some sense, then what does that mean? Do we need to rethink? Do we need to reevaluate? Or we just need to go because we are in the habit of going and we have to complete the circle of our life, and that is it. Professionals, like all of us, we are always missing our friends because we are investing so much in our careers. I don't know when I lost my best of the best friends. So is the case when I was very busy, or you were very busy in your business. You were missing the religion. You didn't go to mosque perhaps 2 years before you went to for your Eid prayers. And then religion or exercise, you are very religious but you never go to gym. Friendships आपने बहुत invest कर लिया और आपने फिर career छोड़ दिए. Best of the best friends were they were having very good friends, circle of friends, but they were not able to reach or achieve some professional thing. So the balance is very delicate. Either of them or 3 or 4 of them is not easy to understand. And then Usman, are you getting with me? Then we have to build on this discussion. Very famous quote that how we invest our wealth and then health to achieve each other or interact with each other. Now, ji, what are the right ways to go? I would like that Usman should help me with all this. With your wisdom, with my teachers here, my colleagues, they will tell us that, well, these were a few things which are maybe important, but now what are the right ways to achieve something which we need to, understand. And just to build on the same, I would again, because Dr. Rana's presence, then it is very easy for many of us that how he could guide us on this concept, sir. Okay, I think one of the great follies that we do in life is to put ourselves in dilemmas, this or that. See, we are sequential thinkers, बचपन से ये होगा तो उसके बाद ये होगा तो उसके बाद ये होगा. एक चीज़ जो मैंने ज़िंदगी से सीखी है वो ये है कि साइमल्टेनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप हर वक्त चीज़ों को सीक्वेंस में नहीं करने की ज़रूरत होती. आप बहुत सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ अगर जोड़ लें तो फिर वो सारी चीज़ें आप कर पाते हैं. ठीक है, ये मतलब लूडो का खेल नहीं है ज़िंदगी के. पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा. और वो लूडो के खेल में आप सारा टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं डाइस के ऊपर. अब अगर डाइस में छिक्का लग गया तो आप बहुत तेज़ी से आगे चले जाएंगे, और अगर 1 आ गया तो बहुत स्लो हो जाएंगे. फिर हम बाकी लोगों को भी देखते रहते हैं कि उसका छिक्का लग गया, मेरा 1 आ गया. सो ये जो एक सीक्वेंशियल थिंकिंग है कि जब मैं ये ख़त्म कर लूँगा तो फिर मैं ये करूँगा, मैं पढ़ लूँ फिर खेलूँगा, मैं दफ्तर चला जाऊँ, फिर जब दफ्तर ख़त्म हो जाएगा फिर मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा. तो मुझे ये लगता है कि मैं जब काम कर रहा हूँ उस दौरान भी एक्सरसाइज कर सकता हूँ. अगर मैंने एक मरीज़ देखा है तो उसको जिस वक्त मैं बाहर छोड़ने जाऊँगा तो मैं भाग के वापस आ जाऊँगा बजाय आहिस्ता. तो शाम तक मेरे बहुत सारे स्टेप्स हो जाएंगे, तो मुझे अलहदा से कोई टाइम नहीं बनाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर मौके पे. अच्छा, मुझे गुफ्तगू करके, किसी को शेर सुन के सुना के, या कोई खूबसूरत वाक़या याद करके, या किसी याद में अपनी वापस जाके, मुझे नॉस्टैल्जिया की बीमारी है तो मैं हर वक्त अपने माजी के बारे में और ख़ूबसूरत लम्हों के बारे में सोचता रहता हूँ. तो उसके लिए ये ज़रूरत नहीं है कि मैं सारा दिन काम करता हूँ और सोने से पहले फिर वो नॉस्टैल्जिक जर्नी पे जाऊँ. बीच बीच में 15 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, जब भी मुझे मौका मिले तो मैं स्विच ऑफ करके अपनी उस वादी में जा सकता हूँ जो मुझे अच्छी लगती है. सो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को हमने जो साइमल्टेनियस एक्टिविटी के तौर पर अगर ज़िंदगी में रख लें, इकट्ठा कर लें, उनको साथ साथ करते रहें,
तो मेरा ख्याल है कि बचत हो जाती है और उसमें फिर वो एक दूसरे को पता नहीं कैसे कनेक्ट हो जाती हैं एक दूसरे के साथ। जब वो मिल जाती हैं तो और ज़्यादा खूबसूरत सी हो जाती हैं। ये यहाँ आपने जगह जगह देखे होंगे पैटर्न सिंध में अजरक के, और यहाँ पर एक चीज़ होती है रिली, ठीक है, उसका जो सारा हुस्न है ना वो एक दूसरे के साथ जुड़ने का है। रिली का वो इतनी हसीन लगती है, हालांकि वो जब अगर आप अलहदा टुकड़ियाँ देखें तो वो फटे पुराने कपड़े होते हैं, लेकिन जिस वक्त उनको आप इकट्ठा जोड़ देते हैं तो वो ना सिर्फ हसीन लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं, बल्कि आप ओढ़ लें तो आपको गर्म भी रखती हैं। तो ज़िंदगी को भी मुझे लगता है कि रिली बनाने की ज़रूरत है। जो कुछ आपके पास है उसको आपस में जोड़ लें। अगर जोड़ लेंगे तो ज़्यादा खुश रहेंगे, तोड़ने की बजाय। Thank you very much, sir, for building the same. जी डॉक्टर उस्मान। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अजीम। आज का टास्क जो है वो इट्स अ वर्कशॉप, और हम आपके कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ करवाएंगे दिमाग से। जब मैंने बहुत ज़्यादा फ़िलासफ़ी पढ़ी और एक गाना जब मैंने सुना तो मैंने सोचा कि यार ये इस गाने में तो सारी फ़िलासफ़ी थी, अगर इसी गाने को मैं सुन लेता तो कितना मज़ा आता। वो गाना मैं आपके गोशगवार करता हूँ, आवाज़ ज़रा ऐसी रखिए कि बस वहाँ तक ना जाए। इधर टेस्ट करते हैं इसको। गाना सुन के सोचिएगा कि आपके जहन में क्या चीज़ आती है। माइंडफुलनेस, एग्जिस्टेंशलिज्म, मुल्ला सदरा, रिफ्लेक्शन, कंटेम्पलेशन। कल हमने बात की थी कि दिमाग में एक सिस्टम होता है दैट इज डिफ़ॉल्ट नेटवर्क। तो जब हम कुछ नहीं सोच रहे होते तो हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं। तमाम दिमाग के हिस्से सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं ऑटोमेटिकली। उसका प्रिमिटिव स्टेज ये हो सकता है कि आप अपने बारे में छोटे लेवल का सोच रहे हो, दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और उसका हाईएस्ट लेवल हो सकता है कि आप कंटेम्पलेशन में बहुत आगे जाके सोच रहे हो अपने बारे में। अभी आपको गाना सुना है आपने, अब बारी आएगी लतीफ़े की। तो आप में से मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेसर ब्रिगेडियर शोएब को कि एक चुटकुला सुनाए हमें। तो पहले तो आप जो ना वो मेरे साथ एक कहका लगा ले दिल से ठीक है। तो जैसे लाफ्टर थेरेपी आजकल बड़ी दुनिया में पॉपुलर हुई हुई है और आपको करना चाहिए, बिकॉज वो कहते हैं कि लाफ्टर इज द मैराथन ऑफ योर हार्ट, कि जितना आप जोर से कहका लगाते हो उतना जो वो ब्लड सप्लाई जो है वो हार्ट को अच्छी मिलती है। सो वी, और हम जनरली हमें हंसते खेलते रहना चाहिए। बात हो रही थी ट्रस्ट की, तो दो सरदार डिसाइड करते हैं कि हमें जो है, सॉरी अगर कोई उससे है, लेकिन एक सिंबॉलिक वो है, हमें पैराड्रॉप सीखना है। तो उनको सिखा दिया जाता है। सिखाने के बाद उनको कहा जाता है कि आप इस हेलीकॉप्टर में बैठेंगे, ये वहाँ पे ये आपको अभी छोड़ रहे हैं, इसमें ग्रीन बटन आप दबाएंगे तो आपका पैराशूट खुल जाएगा। अगर ग्रीन बटन से नहीं खुले तो रेड बटन से खुल जाएगा, क्योंकि इमरजेंसी बटन है हमारा। जो नीचे जब आप उतरेंगे तो जीप खड़ी होगी, वो जीप आपको लेके वापस एयरबेस पे आ जाएगी। वो छलांग मारते हैं, ग्रीन बटन दबाते हैं, पैराशूट नहीं खुलता, रेड दबाते हैं, पैराशूट नहीं खुलता। तो उसको कहते हैं रमतिया लगता फ्रॉड हो गया है, तू देखिए थले जीप भी नहीं होनी। सरदार अब क्योंकि काफ़ी बदनाम है, एक लतीफ़ा मुझे भी याद आ गया। एक सरदार केले के छिलके से स्लिप हो जाता है, तो उसका दोस्त आके पूछता है कि यार तुमने ये पाँव रखा क्यों था? तो
तो कहता मैं चेक कर रहा था बीच में केला है भी कि नहीं। हमारे जो साइकेट्रिस्ट हैं वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के उनके शौक़ हैं। कोई आर्टिस्ट है, कल मेरे कुछ पोइट से बात हुई, और एक बड़े मंझे किस्म के हमारे पास यहाँ पे गाने से शौक़ रखने वाली भी हैसियत मौजूद हैं। इसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रोफेसर अल्ताफ़ कादिर से कि हमें कुछ लफ्ज़ अनायत फरमाएँ। प्रोफेसर अल्ताफ़ के लिए तालियाँ। सर तो आ जाओ, आगे आ जाओ। जो फनकार होता है ना, उसको सुनने वाले ही एनर्जाइज करते हैं। तो आपकी तालियों की आवाज़ कोई नहीं आई अभी। पहली बात तो ये है कि रात को इतनी देर से यहाँ से जाना हुआ कि मैं जब होटल में पहुँचा तो मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। मैं काफ़ी देर इंतज़ार के बाद जब नीचे रिसेप्शन पे गया तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कोई नींद की अगर आपके पास कोई गोली है तो वो दे दें। तो मुझे कहते हैं आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें, ये नींद की गोली लें और शांति के साथ कमरे में जाके आराम से सो जाएं। तो नींद की गोली तो खाई, लेकिन सारी रात इंतज़ार किया, शांति नहीं आई, ना फिर नींद आई मुझे। तो सुबह इसलिए जब उस्मान साहब ने ये रिक्वेस्ट की कि नहीं, बल्कि इनका तो हुक्म है हमारे लिए कि कुछ सुना दें, तो मैंने पूछा कि क्या सुनाएं। कहते जो आपके दिल में आए सुना दें। तो अब दिल में क्या ख्याल आता है, मैं वो थोड़ा सा आपको। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ज़बरदस्त रेडियोलॉजिस्ट जिनके तमाम बच्चे डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपनी अपनी फील्ड्स पे कब्जा किया हुआ है। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे हमें एक शेर सुनाएं। Assalamu alaikum. I am Dr. Sharif from Skardu. I am basically a radiologist, not a psychiatrist. तो मैं यहाँ सिर्फ एक शेर सुनाऊंगा। बेहतर है माहो मेहर पे डालो न कमंदें, बेहतर है माहो मेहर पे डालो न कमंदें, इंसान की खबर लो कि जो दम तोड़ रहा है। इसके अलावा एक और इसी से मिलता जुलता एक शेर है जो इंसानियत के हवाले। ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का, अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर न सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शब तारीख सहर कर न सका। थैंक यू। डॉक्टर साहब की जो बेटी हैं वो उन्होंने हमारे साथ ट्रेनिंग भी की, डॉक्टर शाहिदा बतूल। इनकी कल है आपकी वर्कशॉप, ये कल बताएंगी कि स्कर्दू में इन्होंने क्या क्या काम किया। संभाव तालियां इनके लिए भी। यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो अपने आप को यंग साइकोलॉजिस्ट कहती हैं, बट इन्होंने पूरे पाकिस्तान में तहलका मचाया हुआ है और अपना ब्रांड भी लॉन्च कर दिया है, वेरी एंटरप्रेन्योरशिप लाइक थिंग। इनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे हमें कुछ शेर या कुछ बताएं। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। देखें जी कैसे कैसे दिमाग यहाँ पे पाए गए हैं। हम एकेडमिक से बढ़ के जब अलहदा बातें करते हैं तो हमें अपने एक दूसरे से कनेक्शन बनता है। आज मैंने बड़ा कुछ सीखा अनिल साहब की ट्रेनिंग से। हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें सिखाई ब्लाइंड फेथ के हवाले से, और बड़ा अच्छा डॉक्टर साहब ने बताया कि फेथ को भी ज़रा देख के चलें। कुछ एक आध शेर मुझे भी
हो रहे हैं कि मैं भी कुछ बोलूं इस पे। एक शेर आपके अर्ज है, ईगो के ऊपर है। मेरी हर एक बात सही, बेबात सही पर बात सही, बेजा हो बात तो बात सही, कुछ ना कहने को हो तो बात सही। ये दिन में बातें होती हैं, ये रात में बातें होती हैं, ये दुनिया है, इस दुनिया में हर बात पे बातें होती हैं। दिन रात तुम्हारी महफिल में दिन रात की बातें होती हैं। बात कुछ नहीं होती लेकिन बेबात की बातें होती हैं। जिस बात में कोई बात नहीं उस बात की बातें होती हैं, जिस बात की बातें होती हैं उस बात में कोई बात नहीं। और जिस बात पे इतनी बात बढ़ी उस बात में कोई बात ना थी, और जिस बात पे इतनी बात बढ़ी उस बात में कोई बात ना थी। और हुजूर जब बात पे बात आ जाए तब बात की बातें होती हैं। ये जो बात करना है, कनेक्ट करना है, ये हमारा बेसिक हमारी नीड है। somebody should listen, somebody should speak। ना भी कुछ सुन रहा हो तो अपने से कनेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने अपनी बात की तो मेरी लगारी साहब पे नज़र पड़ गई। लगारी साहब मुल्तान के एक फ़िलासफ़र हैं जो हमें अब कुछ अच्छी सी बात बताएंगे इसी टॉपिक के हवाले से। खुश कैसे रहा जाए, कैसे हम बर्नआउट, एग्जॉस्शन, ये दुनिया के कामों से कैसे अपने आप को थोड़ा सा अलहदा कर सकते हैं। कुछ बातें इनसे सुनते हैं। सरायकी के हमारे एक शायर हैं, इरशाद तौसीफ़ी नाम है, अभी रिसेंटली डेथ हुई है उनकी। उनकी एक नज़म थी जोगी, मुझे अनफॉर्चुनेटली वो नज़म तो याद नहीं है। उसका बॉटम लाइन थी कि खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तकिए के नीचे से मिल जाए। खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तकिए के नीचे से मिल जाए, और ना खुशी आपके दरवाजे पे आके दस्तक देती है। खुशी को ढूंढने का एंडेवर होता है। खुशी कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसको उठा के कोई लेके जाए। खुशी कोई मिठाई नहीं है कि जिसको आप दुकान पे जाके ख़रीद लें। जिस तरह बाकी काम किए जाते हैं इसी तरह खुशी के लिए भी आपको कोई ना थोड़ी बहुत एंडेवर्स की जाती हैं। अच्छा, वो एंडेवर्स लाजमी नहीं है कि कोई आपके कॉन्शियस लेवल पे हों। कुछ खुशियाँ ऐसी हैं जो हमें कल्चर और सिविलाइजेशन ने हमें अता की हैं, लेकिन सम हाउ आर द अदर हम एज ए कल्चरल यानी आइडेंटिटी के तौर पे वी आर कल्चरली अप्रेसिव पीपल। वो एक प्रोग्राम आया था शेर दरिया, पता नहीं अगर किसी को याद हो, अपना आब्दी, क्या नाम था उनका, वो जो BBC में रज़ा अली आब्दी का, वो सिंध के ज़रिए से उसने ट्रैवल किया उसने। अच्छा, वो जब DG खान आया तो DG खान में हमारी वो बड़ी बड़ी चारपाइयाँ होती हैं, वो मैंने दिखाई हुई हैं कुछ लोगों को, शायद मेरे ख्याल आपने नहीं देखी होंगी। वो इतनी बड़ी होती हैं कि 10-10, 15-15 बंदे बैठे होते हैं उसके ऊपर। तो बड़ा हैरान हुआ कि ये आप क्या करते हैं यहाँ पे। तो हम कुछ नहीं करते वहाँ पे, हम सिर्फ वहाँ पे बैठे रहते हैं और गप लगाते हैं और चाय पीते हैं। हमारे लिए यही खुशी है। तो उसका जो प्रोग्राम का एक बॉटम लाइन थी, उसने कहा कि जी DG खान में लोग उन्हीं बड़ी चारपाइयों पे बैठे रह गए और वक्त आगे निकल गया। सर, हम वक्त को आगे निकलने, खुद से हमने वक्त को आगे निकलने दिया है, लेकिन हमने उसके बदले खुशी ली है। सो देयर इज़ ए ट्रेड ऑफ। थैंक यू। हम मेडिकल स्टूडेंट से भी कुछ शेर सुनना चाहेंगे। जुनेद, प्लीज़ हमें कुछ अपने। नियत शौक़ भर न जाए कहीं, नियत शौक़ भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुज़र न जाए कहीं। ना मिलाकर उदास लोगों से, ना मिलाकर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं। आरज़ू है कि तू यहाँ आए, आरज़ू है कि तू यहाँ आए, और फिर उम्र भर न जाए कहीं। आओ कुछ देर रो ही लें, आओ कुछ देर रो ही लें जुनैद, फिर ये दरिया उतर न जाए कहीं। ये आपका शेर है। डॉक्टर फारिया लाहौर से, साइकेट्रिस्ट, यंग साइकेट्रिस्ट, इन्होंने भी एक शेर निकाला है। This is important to me because it was by my dad for my mom. और उनकी अब्बू की वफ़ात हो गई थी पिछले साल। सो उन्होंने मेरे ख्याल से, क्योंकि हम जो 4 बहन भाई थे, जब हम सब पढ़ पुढ़ के फ़ारिग हो गए, सो दिस इज़ समथिंग दैट आई थिंक ही पेड अ ट्रिब्यूट टू द रिलेशनशिप एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। सो आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट। उन्होंने कहा था कि अम्मी को लिखा कि ना तुम बदले ना हम बदले, बदल गया ज़मा,
ना तुम बदले ना हम बदले, बदल गया ज़मा, हम रहे मजबूत, गुजर गया तूफान. Because he was a retired bureaucrat, so he got retired very early. So after that, we had a lot of, there was financial pressures, and there was so much that my mom and they both went through. So I think this is very important to me because it signifies the importance of faith in a relationship and the fact that if you're together, you can go through anything. So this is something that I really like. There is a difference between wanting and desire. तमाम religions में इसमें एक फ़र्क बताया गया है. जो सिद्धार्था अपना महल छोड़ के गया था, क्योंकि उसको कभी नहीं बताया गया था कि मौत भी आनी है, बीमारी भी आनी है. तो जब उसने एक दफ़ा देखा बूढ़ा आदमी जो मर रहा है गली में, तो that made him think कि I have to think about something other than the material world around him and the women around him and the money around him. तो ये जो इंस्टिगेशन होती है आपको अपने स्टेटस को से अलहदा सोचने की, ये सबको मिलती है कहीं ना कहीं. अगर नहीं भी मिलती तो मेरा ख्याल है इसको देखना चाहिए, खुद ढूंढना चाहिए. टाइम इज़ वेरी क्रूशल. अभी मैं ज़्यादा न्यूरोबायोलॉजी में नहीं जाऊंगा, जो अभी माहौल चल रहा है इसी को अगर आपकी इजाज़त है तो मज़ीद लेके जाते हैं. हमारे पास है कुछ मिनट. टाइमर नज़र नहीं आ रहा. इस पर आ रहा है टाइमर? हाँ, मैं एक दो लोगों से ले लेता हूँ कमेंट्स. डॉक्टर साहब से हम शेर या लतीफ़ा या जो भी ये बोलना चाहें, आ जाइए सामने आइए. हमारे विजडम, हाँ, हम ज़रा रिलैक्स होना चाह रहे हैं. विजडम तो पहले ही बहुत हमारे पे आ रहा है, लेकिन बहरहाल यस, दिस इज़ वेरी ट्रू. बहुत ज़्यादा विजडम की बातें होगी और फ़लसफ़े की बातें होगी. लेट्स कम टू लाइटर नोट. आई एम माई सेल्फ मेमन, और मेमन जो है वो तकरीबन सारे बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं टिल द टाइम दे सफ़र सम हेड इंजरी एंड गो इनटू सम अदर फील्ड. तो ये किसी का चुराया हुआ शेर है जो मैं आपको बता रहा हूँ. ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब. ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब. मौत क्या है किसी मेमन का गज़ल ख्वाह होना. कोई महफिल जॉन एलिया के बगैर पूरी नहीं हो सकती, ठीक है ना. जॉन मिलिया के हमें एक शेर, आप आए डॉक्टर साहब. डॉक्टर सलमा खलील ये ऑटिज़म पे काम कर रही हैं, ये कुछ शेर सुनाएंगी और इसके बाद हम प्रोफेसर नासिर की तरफ जाएंगे. कुछ साइकोलॉजी के हवाले से ही शेर है. रूह में पेवस्त रहते हैं उम्र भर, वाक़यात नाकाबिल फरामोश होते हैं. कुछ ज़ख्मों के निशान नहीं होते, कुछ दर्द बड़े खामोश होते हैं. लवली लवली. इस पे आपने जो जिस बहर में कहा है वो कहते हैं, मशगला खूब मिला है मेरी तन्हाई को, हाथ से नापता हूँ जख्म की गहराई को. प्रोफेसर नासिर कनाडा से आए, स्पेशली मेरे उस्ताद हैं, बहुत मोहतरम शख्सियत. इनका वैसे अलहदा से एक प्रोग्राम है म्यूज़िक के ऊपर. आज ही मेरे ख्याल 2 बजे 2 बजे खाने के बाद क्या कोई एक शेर, एनीथिंग यू वांट टू, वन लाइनर. नहीं, बस शेर तो खैर इतने पढ़े जा रहे हैं सुबह से, और छोटी सी बात करेंगे इंशाल्लाह. सो छोटी सी बात सिर्फ इतनी, जब बच्चे बड़े होते हैं, प्रोफेसर्स लेवल पे आते हैं और एक्सप्रेस करते हैं, अच्छा लगता है. मेरी ख्वाहिश थी कि डॉक्टर साहब के कदम छूं. ये मुझे इंडियन में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ लगती है ना, वो ये स्ट्रक्चर है कि आपका जो उस्ताद है, जो वालिदैन हैं, दिस इज़ द सिंबल वी शुड नो. और क्योंकि हम भूल गए तो आई थिंक वी शुड रिवाइव इट. तो मेरी कोशिश होती है अपने वालिदैन के भी पाँव छूं और उनका आशीर्वाद लें. थैंक यू वेरी मच, वी आर वेरी लकी टू हैव यू. डॉक्टर साहिबा कराची से आई हैं, इनको भी कुछ लतीफ़ा शेर. आइए सामने. मेरा नाम रोज़ीना दारवार वाला है. मैं जिना हॉस्पिटल कराची से हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. मैं एक शेर सुनाना चाहूँगी, लेकिन थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड ये है कि जब मैं कॉलेज में थी तो हमारी एक फ़िलासफ़ी की टीचर थी और मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट हुआ करता था ये. और मैं शुरू के सेमेस्टर में अक्सर शिकायत करती थी कि मैडम ये तो इतना ड्राई है,
इसको आप कुछ मेरा इंटरेस्ट पैदा करें कि मैं इसको पढ़ सकूं, क्योंकि मुझे बहुत ख्वाहिश है कि मैं इसको पढूं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, एक शेर के साथ वो मैम, उन्होंने कहा बेटा ये जो फ़िलासफ़ी है ना, विजडम है, इस विजडम को समझने के लिए आपको अपना एनालिसिस करना होगा, अपनी ज़ात की गहराइयों में जाना होगा, और इंसान के अंदर हर रिसोर्स मौजूद है। जो भी आप करना चाहते हो, इंसान के अंदर हर रिसोर्सेज मौजूद हैं। आप अपने आप को पढ़ो और उन रिसोर्सेज को, अपने पोटेंशियल को अवेल करो, जिसके लिए ज़रूरी है एक बेहतर इंसान बनना। तो उन्होंने नासिर काज़मी का ये शेर सुनाया, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। बहुत बहुत ज़बरदस्त। गालिब का एक शेर डिप्रेशन में मुझे याद आ रहा है, वो फ़ौरन आपके जहन में। ये पहली गज़ल का शेर है मेरा ख्याल है। वो कहते हैं, कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई ना पूछ, कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई ना पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। और इसके साथ हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने आपको एक्सरसाइज कराई बहुत ज़्यादा। इनसे हम एक शेर सुनते हैं। इसके बाद आखिरी शेर ले लेते हैं, ताकि क्योंकि डॉक्टर अजीम इससे पहले कि हमें ज़बरदस्ती हमारे से माइक वापस ले लें। सर मोहम्मद राना अपना सर शोएब ने एक शेर सुनाया था, तो और सर आपने कहा कि शोएब साहब ने, तो खुशी जो है अंदर से आ रही होती है, और आज सारे के सारे साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट अपनी फीलिंग का इजहार कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो फीलिंग का एक्सप्रेशन है वो भी खुशी का एक तरीक़ेकार है। तो आज बड़ा मज़ा आ रहा है कि सब अपने अपने पुराने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो आप ही के शेर को कंटिन्यू कर रहा हूँ कि मेरे करीब से गुजर कर मेरा हाल तक न पूछा, मैं कैसे जान जाऊँ कि वो दूर जाके रोए, मैं जान जाऊँ कि वो दूर जाके रोए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और एक छोटा सा चुटकुला है कि आज हम कल वापस आ रहे थे कराची से, तो डॉक्टर अनिल मेरे साथ थे। तो अक्सर वो लतीफ़े होते हैं जो कि औरतों के ऊपर बनाए जाते हैं। तो उसमें एक छोटा सा लतीफ़ा था, चुटकुला। एक औरत अपने शौहर से कह रही थी, अब तुम फैसला कर लो कि मेरे साथ रहना है या खुश रहना है। ये बड़ा ख़तरनाक उन्होंने एंगल खोल दिया। अब एक शेर मैं भेजता हूँ आपके सामने, आप पता नहीं ये कौन से ग्रुप में आता है। तो एक औरत की शादी होती है, जैसी शादी होती है तो रोने लग जाती है। तो उसके सहेलियाँ पूछती हैं, भाई अब इतनी मुश्किल तो शादी हुई है। वो कहती है इतना टाइम लगा और शादी के लिए मिला है ये। क्या नाम है आपका? डॉक्टर शफी मंसूरी मेरा नाम है, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ मैं। जिन्नात मेरी स्पेशलिटी, लेकिन अशार में जिन्नात पर नहीं है। हाँ, एक किताब भी लिखी, हाँ मैं जिन हूँ। तो बहरहाल मैं इस वक्त जिन्नात की बात तो नहीं करूँगा, क्योंकि काफ़ी जिन्नात हैं, वो ऐसा ना हो कि मेरे ख़िलाफ़ जो है वो वापस आ जाए और कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो मैं बेसिकली फैकल्टी में होता हूँ लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन में, दारुल-सैद हॉस्पिटल में। अच्छा, कुछ अशार हैं। दिल के ज़ख्म भरेंगे कैसे, गुल के चाक सिएगा कौन, गुल के ज़ख्म भरेंगे कैसे, दिल के चाक सिएगा कौन, मौसम गुल तो आके रहेगा, उसको रोक सकेगा कौन। तुम भी हो पाबंद रिवायत, मसलहतों का मैं भी शिकार, तुम भी हो पाबंद रिवायत, मसलहतों का मैं भी शिकार, दिल की बात कौन कहेगा, दिल की बात सुनेगा कौन। शमा की सूरत मैं भी अपनी आग में जलता रहता हूँ, शमा की सूरत मैं भी अपनी आग में जलता रहता हूँ, शमा के साथ जले परवाने, मेरे साथ जलेगा कौन। आखिरी शेर, इश्की हम कोताह कदों में कोई भी सुकरात नहीं, इश्की हम कोताह कदों में कोई भी सुकरात नहीं, सच के गुन तो सब गाते हैं, सच का जहर पिएगा कौन। थैंक यू। इसके साथ ही हम पहले सेगमेंट के वापसी पे हिस्से पे जाते हैं। डॉक्टर अजीम इसको आगे लेके चलेंगे। शुक्रिया। Thank you, Dr. Usman. I think Dr. Usman has built very well with all of you the connection. Let's not forget the topic again, that high achievements versus your happiness. So we are very much there. I think आपने उसको बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट कर दिया है कि आप लोगों की इस साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर कुछ कंपोनेंट्स जो आप लोगों ने शेयर किए हैं, मेरा ख्याल है कि हम सब डॉक्टर्स, सब तो नहीं, खैर हमारे जैसे डॉक्टर्स बहुत लैक करते हैं, और हमें इन कनेक्टिविटी से शायद आइडिया होता है कि परहैप्स वी नीड टू कंट्रोल एंड हैंडल आवरसेल्व्स इन द राइट डायरेक्शन. So therefore, thank you very much all of you कि this has taken the topic further. अब उसकी कुछ थोड़ी सी साइंटिफिक चीज़ें जो हम पढ़ाते हैं अपने मेडिकल स्टूडेंट्स, रेजिडेंट्स को, उनको ज़रा देख लेते हैं. देन आई थिंक इट इज़ ओवर इफ़ द मैसेज इज़ कन्वेड टू यू.
We were talking about the balance. What is the right way to go if we know that how much we invest, all of us, in terms of gaining our professional skills, building our families, and then perhaps forgetting a few things which are more important maybe. So this is what we need to see, that what it is. Physical component is one where you take care of your exercise, your health, I don't know, after how much time you get your monthly or yearly evaluations for your blood test or otherwise, or mental assessments का तो शायद हम जिक्र ही नहीं करते. But it is there. So your spiritual or your personal component with your Almighty, with your own self or with your prophethood, whatever it is also one component which we need to understand that it is very much there. Please don't forget in the very busy life. And then is your professional, which we are spending here. We are here together, the professional component. You work, you see your patients. Keep working and working and working. Perhaps this is also taking a lot of out of us. And your emotional component, which means that your love and hate with your own self, with others. How much is your anger control, your love control, or many handles which you need to have, which you need to identify. This is also one important component within you. So looking at all these fours, they are not very disconnected. They are interlinked, as Dr. Rana said already. कि ये नहीं हो सकता कि आप एक छक्का लगा रहे हैं और उसके बाद फिर भूल जाएं कि अगला छक्का कब आएगा. I think these all four components are very much interconnected. If you are forgetting them, ignoring them, I think that is not good. And if we are able to make some balance, I think this is what it is. If I ask you, talking about all these components, are we able to work on that? And it will be very easy that we will be working on these four components which we have discussed. I think no. Believe me, it is very difficult. If we know what is the importance of exercise, we know what is the importance of relationship with Almighty. But when we are busy in our clinics, we perhaps forget this. We are not able to go to gym or exercise maybe for years and years. And when your doctor tells you that you are having hypercholesterolemia at the age of 47, I think that's a bad news. So this is the cost, one single cost which we pay for ourselves, for others maybe. These are, with this, like, they are very much interconnected like this machine. One component is helping the other and the other component is helping the third one. And that is the actually, that actually needs to go. If any of these three machines or whatever you can say is you are entangled or you have got somewhere stuck, I think this machine will not be working. This will be working, but working in a very, very difficult way. So, and this is what we actually keep teaching our students, our other people. All of you know, I don't need to go into a lot of details. What is the stress management? You know this, but how many of you practice it? You know how to handle with the difficult people, but how are we actually doing that with our colleagues, with our friends? So, first of all, acknowledge, identify these potential areas where I am lacking, where is the problem lying, why my friends are annoyed or my wife is complaining. Learn on how to fix. If for example, we are also, not all of us, the students, the general public, they all need to identify if there is a problem, how we need to fix it, and the expert is the right person maybe. But first of all, is the expert himself self-managed in first place? How is he going to help if he himself is a bad example? Can I ask anybody, stop smoking if I am a bad smoker with black lips? The patient will be laughing at me. Doesn't it happen? It's a very common observation that our patients keep telling us that, please don't tell me, because I know you. So therefore, a good time for self-reflection, and then practice is the answer. Again, the same, balance amongst all, staying at peace with yourself, with others, and then contributing to society. No matter how rich you are, how professionally
achieve competent you are, but if you are not in somewhere in balance and you are not, contributing to the society, I think many things go unrewarded, unnoticed, and they are of no use, except you. The same, again, the Eisenhower box, don't need to go into a detail, you all know it. The cupboard shelf, balancing and managing your time and your stress is, don't sacrifice one for the other is the answer. These 4 components which we have discussed, 25% each. If we are compromising one for the other, we are not in balance. No matter the way, it's on you and me how we manage it, but we are not in balanced lifestyle. The banker, for example, after his 10 hours job, is asking you that how do I need to do exercise? My job is very tough. I have to spend my time with family. But where's the time for exercise? The simple answer could be that, well, you need to change your shoe in your bank. First go to ground and then go home. Because it is impossible that you are coming back from out of your family time when you are going home after 12 hours. So simple techniques which we know what is the problem solving with our own self. But again, the question comes, do we practice with our own selves in first place? If we do, then I'll be able to convince my banker colleague. Again, see, if it is in balance going together, when they are interconnected, there is no separate time for one for the other. This is happiness. If you are able to carry these components with your own self, you are carrying like 25, 30, maybe. एक ज़्यादा हो गया, दूसरा कम हो गया, लेकिन आप aware हैं कि I need to have some balance. I think that is happiness. That is the happiness scientific definition. बाकी जो components आपने discuss किए हैं different ways से, I think they are beautifully driven, beautifully conveyed, but the scientific way of presenting is this way. Again, the same stress and actually, yeah, more or less, I think I have already talked about this. But this curve is very common. We all keep seeing, but we forget it. Just give 1 second to the point where there is fatigue and exhaustion. Many of us, the medical doctors, are lying there. When our performance starts coming down, we are fatigued, and then maybe anxiety, panicking, and exhausted actually. Don't let it happen to your own self. If you are fatigued, you feel as if your energy is not, you are not doing very well with your own self and your families, take your time out here. That is the actual message out of all this for all of us. And then the same stress management and handling. Thank you very much.